Yes, students, welcome to the third series of operating system. Today, we'll be covering operating system services. An operating system provides services to both the users and the system. Operating system इंटरफेस की तरह काम करता है, इसलिए वो सर्विसेज एक साइड से यूज़र को देता है और दूसरी साइड से सिस्टम को प्रोवाइड करता है. It provides system an environment to keep its resources in organized manner. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या करता है, उसके रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, एफिशिएंटली मैनेज करता है ताकि उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो सके. सेकेंडली, फॉर द यूजर्स इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम इन अ वेरी कन्वीनियंट मैनर. यूज़र सिर्फ अपना प्रोग्राम बनाता है और उसको रन करता है और उसको पीछे के इंट्रिकेसेस से कोई मतलब नहीं होता कि वो कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ स्टोर होगा, कैसे वो डेटा को फेच करके लाएगा. तो बहुत ही कन्वीनियंट मैनर में हाई लेवल लैंग्वेज में हम अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हैंडल करता है. आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज पढ़ने वाले हैं वो हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, communication, error detection, resource allocation, and protection. These are all the services carried out by the operating system for the help of the user as well as the system. We'll discuss these services one by one. Before discussing the services, we can look into this diagram. Here, at the lowest level, you can see there is a hardware. This is a layered architecture of operating system. We have already discussed also. Lowest level is the hardware, which is protected by the operating system. Means interaction to the hardware is through operating system. This yellow, where I have written the services, this is the whole operating system surrounded by this blue line. And operating system is providing you all the services, that is program execution, input output operation, file systems, communication, resource allocation, accounting, protection, and many more, right? And on the top of it we have the user interfaces. Then the user communicate with the help of system calls to access the various services of an operating system. Our next lecture series would be about system calls. How we communicate, how a user communicate and take the help of operating system for its services. So first service which is provided by the operating system to the user is program execution. What all it do in this? It loads a program into the memory with the help of a system software which is called a loader. After loading the program into the primary memory, the program is called a process now. So what is the difference between a program and a process? A program in execution is called a process. After loading the program into the memory, it executes the program. For executing the program, it handles all the input-output operations in the program written and loading, then displaying your results on the monitor or to the file system, whatever may be. It also provides a mechanism for process synchronization. Now the word comes synchronization. What is synchronization? If the same resource is used by more than one processor, then that resource is accessed one by one. If it is used to write a program, if you want to edit that data, then that should be one by one. And if both the processes wants to just read the data, then no need of synchronization there. We'll be discussing this chapter of synchronization later in upcoming series. It also provides a mechanism for process communication. If more than one processes are running, they need to communicate with each other. This communication is also handled by the operating system in a very efficient manner. Next service which is provided by the operating system is input-output operations. An operating system manages the communication between user and the device drivers. We already discussed that
the systems or the drivers or the output devices attached to the system are controlled by a special software which are called device drivers. These are also system softwares which are installed in the operating system before we connect a device and use it. So in input output operation means read or write operation. We can read or write a system from any file or any specific input output device. Operating system also provides the access to the required input output device whenever required. You write a statement in our program to give the output on a monitor. It will select the monitor for you. If you want to store the information in some particular file, it will store the information in the file. So whatever device you want to access, either it can be a pen drive, it can be a printer, the operating system is handling this whole cycle. Here you can see in this figure, we have three components basically. One is the CPU, second is the input output device and the memory. So in case of an input output operation, if we give a command from the CPU that we want to print a statement on the monitor. This input output command will print the statement on a monitor and it will also save as it's connected with the memory. So this whole cycle is handled by the operating system. Then the next service which comes into the picture is the file system manipulation. So what is a file system? A file system is an organized collection of various files and directories for easy navigation and usage. In file system manipulation, the operating system helps us to read or write into a file. It also helps in permission handling. In case we give a file a permission to a user to just to read that file, it will handle that. If he gives the command of writing into that file and he is not permitted to write into that file, it would deny the user. You are not authorized to access this file for writing purpose. We can grant the read write right also. We can grant the execution right also. So it will first check the file and the rights given that to that particular user. If he is permitted to do that particular operation, then only it will allow. So this helps in the protection of various files. Operating system also provides an interface to the user to create or delete various files or folders and to organize our data. Operating system also provides an interface to create the backup of file system. Operating system has the facility for automatic backing up of our system files. If we create a backup, we can set the operating system parameters to take a backup after every 24 hours, 1 day, 2 day, 48 hours, 1 week or whatever we want. We can set a parameter and it will automatically take the backup of our files. We have seen on our mobile systems also, there is a backing facility. जितनी भी हमारी फोटोज हैं वो बैकअप होती रहती हैं. हमारे पास क्लाउड स्टोरेज होता है, उस क्लाउड के ऊपर आपने देखा होगा, इफ यू allow the settings to sync your photos with the cloud, it will automatically with time on the background processes will handle this backup facility. This facility is a facility which is provided by the operating system to get the file saved permanently. Next very important service provided by the operating system is communication service. If two processes are running and they want to share some data with each other, then both the processes can be on one computer or these processes may be running on different computers. Even though those computers can, if connected through any network, the operating system will handle the communication part of this two processes. Like in a chatting software, what we are doing, we are chatting with a group, we can chat with particular system or a particular friend of ours. So both these communication is handled by the operating system. There are two models here for sharing the information or communication. One is the shared memory
एंड सेकेंड इज मैसेज पासिंग. अब बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली शेयर्ड मेमोरी मॉडल तब यूज किया जाता है अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा है, आपस में कोई फाइल्स हैं जिस पे दो यूजर्स काम कर रहे हैं. बार बार शेयर करना उस फाइल को या फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखने से क्या प्रॉब्लम आएगी कि कंसिस्टेंट नहीं रहेगा डेटा. अगर एक यूजर ने डेटा एडिट किया तो वो दूसरे के पास अगर उसकी कॉपी है तो उसमें वो एडिट नहीं होगा, और उसने अपने एंड पे कुछ एडिट किया तो इन दोनों फाइल्स को फिर से सिंक्रोनाइज करके मर्ज करना पड़ेगा. तो उससे बेटर हमारे पास मॉडल आता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल. इसमें क्या होता है, हम कंबाइंड मेमोरी रखते हैं, और देखो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फिगर जो है प्रोसेस ए भी उसको एक्सेस कर पा रहा है और प्रोसेस बी भी उसको एक्सेस कर पा रहा है. तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा कॉमन फाइल्स हैं वो सब शेयर्ड मेमोरी वाले पोर्शन में है, एंड द बोथ कैन कम्युनिकेट with that particular file with single copy only. Second kind of a model is message passing. In case of message passing, see in figure 2 what process A wants to communicate with process B. Then what will do? Process A will send the message to the kernel. Kernel here is the operating system. Operating system will check the destination address where you want to communicate. Process A wants to communicate with process B. Then it will send the message to the process B. In this way, communication is handled by the operating system. Next, very important function which operating system handles is error handling part. एरर कभी भी आ सकता है एक सिस्टम में, वो सीपीयू की वजह से भी हो सकता है, वो कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस की वजह से भी हो सकता है, कोई मेमोरी हार्डवेयर की वजह से भी होता है. कई बार आपने देखा होगा किस तरीके का एरर आता है. सीपीयू की वजह से कैसा एरर आ सकता है? अगर एरर आता है आपके पास डिवाइड बाय जीरो एरर, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑपरेशन लिखा हुआ है जिसमें आपका डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है, तो दिस ऑपरेशन कांट बी हैंडल्ड, तो वो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा. ऐसे ही कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने सपोज अपने सिस्टम से प्रिंट की कमांड दी और प्रिंटर इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, then it will operating system will check your instruction and it will give you revert the error message printer not installed. And memory issues are also there. Memory problems are memory out of space, or you have deleted some file and you want to access that file from the memory. What message it will display? Sorry, this file doesn't exist on your system. Right? I had shown this on in the image also. Here you can see if you want to run some media file, maybe some music file or some video file, and that file has already been deleted from your system, then this message will appear. Sorry, this media file doesn't exist on your internal storage. This message is given by the operating system to help the user to handle the error. So OS constantly checks for possible errors. Operating system takes an appropriate action to ensure correct and consistent computing. So in this way, it helps the user to handle various errors. Next function or service provided by the operating system is resource allocation. You know, हमारे पास हमेशा रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और यूजर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं हमारे सिस्टम में, स्पेशली इन केस ऑफ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट. Resources means main memory, there are CPU, file, storage, and these are all resources attached to a system. Now, अब क्या प्रॉब्लम आती है कि OS को मैनेज करना होता है सभी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, ताकि कोई रिसोर्स अगर खाली है तो वो यूजर को अलॉट हो जाए, और अगर सेम रिसोर्स को एक से ज़्यादा यूजर सेम टाइम पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम कैटेगराइज कर सकें, उसको शेड्यूल कर सकें कि कौन से प्रोसेस को पहले मिलेगा या कौन से यूजर को पहले मिलेगा, उसके बाद दूसरे यूजर को मिलेगा बेस्ड ऑन सम प्रायोरिटी और एनी काइंड ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स व्हिच वी आर गोइंग टू discuss in the further series. Or resources are allocated in such a way that no deadlock occurs.
डेडलॉक क्या होता है? आप साइड में जो इमेज गिवन है उसमें नीचे वाली इमेज पे आए। इसमें क्या है, दो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, एंड वी हैव टू रिसोर्सेज, रिसोर्स R1 एंड रिसोर्स R2। इस पिक्चर में एरो दिखा रहे हैं रिसोर्स 1 से प्रोसेस P1 के पास। इट मीन्स कि रिसोर्स जो है वो प्रोसेस P1 को मिला हुआ है। और प्रोसेस P1 से आप देखोगे एक एरो निकल रहा है रिसोर्स 2 की तरफ। इसका क्या मतलब होता है कि प्रोसेस P1 को रिसोर्स 2 की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए वेट कर रहा है। ऐसे ही प्रोसेस P2 को रिसोर्स 2 से एरो ग्रांटेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि रिसोर्स 2 जो है वो प्रोसेस P2 के पास है और वो वेट किसके लिए कर रहा है, रिसोर्स R1 के लिए। अब क्या प्रॉब्लम आई, प्रोसेस P1 के पास R1 है और उसको R2 चाहिए, और प्रोसेस P2 के पास R2 है, R1 चाहिए। दोनों में से कोई भी उस रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाहता। जब तक एक प्रोसेस उस रिसोर्स को नहीं छोड़ेगा तो वो दूसरे को मिलेगा नहीं, और दोनों का ही काम फिनिश नहीं होगा। तो इन केस इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे क्या काम होता है कि ये डेडलॉक ही ना आए। इस डेडलॉक के आने से पहले ही वो रिसोर्सेज को इस तरीके से शेड्यूल करे कि पहले एक का पूरा काम हो जाए, उसको दोनों रिसोर्सेज मिल जाए, वो अपना काम खत्म करेगा, वो दोनों रिसोर्सेज को छोड़ेगा, फिर वो दूसरे प्रोसेस के पास आए और उसको दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दे, ताकि दोनों का काम हो सके विदाउट डेडलॉक। तो डेडलॉक को हम आगे की सीरीज में करेंगे। ये भी हमारा फर्दर एक पूरा यूनिट है डेडलॉक के ऊपर, इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोटेक्शन कैसे होती है? रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन, सिस्टम के साथ जितने भी रिसोर्सेज हैं, इट एंश्योर्स दैट एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड। जिस यूजर को जिस रिसोर्स का एक्सेस है वो सब उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर पाए, कोई अननेसेसरली किसी की मेमोरी को एक्सेस ना करे, किसी की फाइल्स को एक्सेस ना करे, ये इंश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडली, operating system also ensures that the external input output devices are protected from invalid access attempts। जो access allowed नहीं है वो access नहीं हो पाए। ऐसे ही हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ऑथेंटिकेशन फीचर्स फॉर ईच यूजर बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। वी कैन प्रोटेक्ट आवर फाइल्स, we can authenticate our files with the help of passwords or passcodes are there. So these are the various features provided by operating system to protect our files, input output devices and other resources. बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे थ्रेड्स टू प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के बाद अब आता है प्रोटेक्शन को हमारे हैम्पर कौन करता है। जो हमारा सिस्टम होता है उसको जो थ्रेड्स होती हैं वो दो तरीके के होती हैं। वन इज फ्रॉम इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स होते हैं जो पर्सनली आपके सिस्टम के अंदर इंटरवीन करते हैं। दूसरे होते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स ऐसे जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को हार्म करें, किसी भी तरीके का हार्म पहुंचा सकते हैं वो आपके सिस्टम को। तो इंट्रूडर्स में अगर हम बात करें तो पहले आते हैं मैस्क्यूरेटर्स। मैस्क्यूरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो ऑथोराइज नहीं है आपके सिस्टम पे काम करने के लिए। वो पेनिट्रेट करता है आपके सिस्टम के अंदर with the mal intention to exploit legitimate users। जो उस पे काम करता है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसको लेजिटिमेट यूजर बोला जाता है। उसके क्रेडेंशियल्स को, उसके पासवर्ड्स को चुराता है और उसके अंदर इंट्रूड कर जाता है सिस्टम के अंदर, और उसकी फाइल्स को, सिस्टम को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाता है। इसकी एक टेक्निक है, वो की लॉगर्स डाल देते हैं आपके सिस्टम पे। की लॉगर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो की स्ट्रोक्स को कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही वो ऑथोराइज्ड यूज़र अपनी सिस्टम पे बैठता है और अपना पासवर्ड डालता है, तो अगर आपके सिस्टम में किसी ने वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है तो आपका पासवर्ड रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में वो पर्सन आपके सिस्टम पे बैठेगा, उस फाइल के अंदर आपका पासवर्ड चला जाएगा और उसको यूज़ करके नेक्स्ट टाइम जो होगा आपके सिस्टम पे लॉग इन कर सकता है। तो ऐसे लोग जो ऑथोराइज नहीं है सिस्टम पे काम करने के लिए, फिर भी वो आपके पासवर्ड्स को चोरी करके उसके अंदर इंट्रूड कर जाते हैं, ऐसे लोगों को हम मैस्क्यूरेटर्स कहते हैं। दूसरे टाइप का अटैक हो सकता है आपके सिस्टम पे मिस फीचर्स के थ्रू। मिस फीचर्स क्या होते हैं? ये ऑथोराइज्ड यूजर्स होते हैं, लेकिन ये उस डेटा
या प्रोग्राम्स या रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं जिनके लिए वो ऑथोराइज नहीं है। सिस्टम के अंदर जाने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, बट कुछ एक फाइल्स हैं, कुछ एक रिसोर्सेज हैं जहाँ पे उनको एक्सेस अलाउड नहीं है। वो उन फाइल्स में अपनी प्रिविलेजेस का मिसयूज करके उन फाइल्स को एक्सेस करते हैं और उसमें कुछ हार्म करते हैं। ऐसे लोगों को हम मिसफीचर्स बोलते हैं। इसके अलावा डीओएस अटैक हो सकता है आपके सिस्टम पे। डीओएस अटैक क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये एक ऐसा साइबर अटैक है जो आपकी मशीन को अनअवेलेबल बना देता है जो वर्किंग यूजर्स हैं उनके लिए। क्या करता है? ये आपके सिस्टम को फ्लड कर देता है विद नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, जिससे वो सिस्टम आप ओवरलोडेड दिखता है और वो सिस्टम एट टाइम्स क्रैश भी हो जाता है, परमानेंटली भी और टेम्परेरीली भी। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है लेजिटिमेट यूजर्स को फॉर ऑपरेटिंग देयर रिक्वेस्ट। जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक शॉप के बाहर कुछ एक लोग उसकी एंट्री पे खड़े हो गए, ठीक है, वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि उस शॉप के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है और जिसकी वजह से जो लोग लेजिटिमेट हैं, जिनको एक्चुअली में उस शॉप के अंदर जाना है, शॉपिंग करनी है, वो उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे अटैक्स को हम डीओएस अटैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स। मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो आपके सिस्टम को थ्रेट पहुंचाते हैं। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रूडर्स को देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला गोल होता है डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना। जिस यूज़र का डेटा है वही यूज़र उसको एक्सेस कर सके। हम अपने डेटा को एक्सपोज नहीं करना चाहते किसी अनऑथोराइज्ड यूज़र के पास। तो इसलिए हमारा सिस्टम जो होता है हमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे देता है? ऑथेंटिकेशन देता है, यूज़र नेम पासवर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अब इसे भी हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। पासवर्ड्स जो होते हैं हमारे लेंदी होने चाहिए, 20 वर्ड्स का होना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए। इसके अलावा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू यूज़र नेम पासवर्ड। बायोमेट्रिक क्या होता है? हम जो हमारे यूनिक फीचर्स हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हो गए, आई बॉल्स हो गई, रेटिना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं, ये सब जो हैं इनका मैस्क्यूरेट होना बहुत मुश्किल है। इसको कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमारे यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इसका चांस कम होता है कि अनऑथोराइज यूजर हमारे सिस्टम के अंदर इंट्रूड करें। इसके अलावा OTPs, वन टाइम पासवर्ड्स की जो फैसिलिटी है वो भी यही काम करती है कि आपका जो एक्सेस है वो अननेसेसरीली कोई और उसके अंदर ना जा सके। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट गोल होता है डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। इंटीग्रिटी मेंटेन क्या होता है कि जैसा आपने उसके अंदर डेटा डाला था वो डेटा नेक्स्ट टाइम जब एक्सेस किया जाए तो वो उसी फॉर्म में मिले, उसके साथ कोई टैंपरिंग ना करे, डेटा को चेंज ना करे। तो इसके लिए जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है दैट इज एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है कि हम एक्सेस राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिस यूज़र को। हमारे पास 3 तरह की राइट्स होती हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो हम जिन यूज़र्स को रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन देना चाहते हैं वो हम तीनों दे सकते हैं। अगर किन कुछ यूज़र्स को हम सिर्फ रीडिंग की परमिशन देना चाहते हैं तो वो रीड ही कर सकें, वो उसके अंदर कोई भी एडिटिंग ना कर सके, उसके अंदर राइट ना कर सके। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल होता है सिस्टम अवेलेबिलिटी का। हमें सिस्टम को अवेलेबल रखना है लोगों के लिए जिसके लिए काम कर रहा है। तो हमें डिनायल ऑफ सर्विस का जो अटैक है उससे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अपनाया जाता है दैट इज कैप्चा। अभी हम देखते हैं क्या होता है ये। देखो, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं हम अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। तो आप कैसे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं? फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन आप फेस करते हैं तो ही आपका फेस है अगर, तभी वो आपका सिस्टम ओपन होता है, नहीं तो ओपन नहीं होता। ऐसे ही नेक्स्ट आई बॉल को स्कैन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपके ये जो फेशियल फीचर्स हैं या ह्यूमन बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं उनको डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करने लगते हैं तो वो डेटाबेस से मैच करता है।
अगर आपकी वॉइस, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी हैं, अगर वो मैच हो जाते हैं जो आपने उसके ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है, तभी वो सिस्टम ओपन होगा, वो वैसे ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एक्सेस कंट्रोल में कैसे होता है। हमारे पास कुछ एक सोर्सेज हैं, सब्जेक्ट जिसको हम बोले, तीन चीज़ें हैं। सब्जेक्ट है, वो रिक्वेस्ट करता है हमें एक्सेस करने के लिए हमारा सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम में क्या हो सकता है, फाइल्स हो सकती हैं, कोई डिवाइस हो सकता है, कुछ भी एक्सेस करना है तो उसको इस एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि इस यूज़र को क्या राइट है इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करने का। तो अगर उसको है तो ही हम उसको एक्सेस करवाते हैं, नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिनाई कर देता है एक्सेस। अब कैप्चा क्या होता है, ऐसा होता है, कैप्चा आपने यूज़ किया होगा, वेबसाइट्स में फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो ये क्या करता है, कितनी तरीके के कैप्चाज हो सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा हैं। इनका क्या काम होता है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपने वही टेक्स्ट लिख दिया, इट मीन्स कि वो एक ह्यूमन यूज़र है जो उसको यूज़ कर रहा है, वो सिस्टम से अटैक नहीं है। क्योंकि हमने डीओएस अटैक में अभी क्या देखा, कुछ एक ऐसे अटैक्स जो आपके फ्लड कर देते हैं रिक्वेस्ट से। तो उससे क्या होगा, ये कैप्चा हर टाइम चेंज होगा, जैसे ही एक रिक्वेस्ट के बाद दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा। तो उसको एक ह्यूमन बीइंग ही फिल कर सकता है, सिस्टम से कोई सॉफ्टवेयर जो अगर हम करते हैं तो वो इसके अंदर नहीं काम करता। तो ये क्या प्रूव करता है कि आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। 3D कैप्चा हो सकते हैं, मैथमेटिकल कैप्चा जैसे एडिशन ऑफ नंबर है, और हर बार ये नंबर जो होते हैं वो चेंज होके आते हैं, तो आप फिक्स नहीं कर सकते किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हमेशा यही डेटा डालेगा और उसका कैप्चा पास हो जाएगा। इमेज बेस्ड कैप्चा होते हैं, बहुत सारी इमेजेस दे दी, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लिक ऑन द कैट, जिस जिस इमेज में कैट है उसको आप क्लिक करोगे, ये ह्यूमन ही कर सकता है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए सिस्टम अवेलेबिलिटी का जो कंस्ट्रेंट है उसका ध्यान रखने के लिए हमें कैप्चा की ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जैसे वायरस है। वायरस जो होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू ट्रांसफर करता है आपके सिस्टम में। जैसे ही आप वो EXE खोलते हैं वैसे ही आपके सिस्टम के ऊपर वो वायरस जो होता है वो अटैक कर देता है, और वो दूसरे सिस्टम्स पे भी जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है नेटवर्क में, उनके पास भी स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा ट्रोजन, ट्रोजन भी एक ऐसा मालवेयर है जो एक हार्मफुल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको इस तरीके से मोल्ड किया जाता है कि हमें वो यूजफुल सॉफ्टवेयर लगता है, लेजिटिमेट लगता है। जैसे इस साल आपने देखा होगा वेलकम टू के, ये आया था एक ट्रोजन। उसके बाद वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हैं विच रेप्लीकेट इटसेल्फ ऑन अदर सिस्टम्स इन द नेटवर्क। इनको कोई EXE के थ्रू अटैच नहीं किया जाता, इसको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, अपने आप रेप्लीकेट करते रहते हैं जैसे ही आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मूव करते हैं। उसके अलावा बॉट्स, बॉट्स क्या होते हैं, ये रोबोट्स का शॉर्ट फॉर्म है बॉट्स। मेलिशियस बॉट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर, ये भी मालवेयर है जो डिज़ाइन किया जाता है आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए, और ये क्या करता है, आपके सेंट्रल सर्वर पे अटैक करता है, उसके ऊपर कंट्रोल ले लेता है, और उससे आपके सारे के सारा नेटवर्क जो होता है वो अटैक में आ जाता है। इसके बाद और होते हैं ज़ोंबीज। ज़ोंबीज क्या होते हैं, वो आपके सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर लेते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका अटैक ऐसा होता है कि वो आपके सिस्टम को दूर बैठे हुए कंट्रोल करता है। तो आपके सिस्टम पे उसने पूरा होल्ड कर लिया, आपकी मेल्स यूज़ कर रहा है, कहीं पे मेल सेंड कर रहा है, सॉफ्टवेयर करप्ट कर रहा है, आपकी फाइल्स को चेंज कर रहा है। तो ऐसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर को ज़ोंबी कहा जाता है। अब इनसे बचने के लिए हमारे पास कुछ एक वेज हैं। हमें सबसे पहले मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए। उसके अंदर हम अपडेट्स निकालते हैं, अपडेट्स आते हैं तो हमारा अपडेटेड होना चाहिए हमेशा सॉफ्टवेयर। फिर हमारे पास लाइसेंस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक स्कैन करता रहे टाइम टू टाइम, और हमें ऐसी साइट्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने चाहिए जो ट्रस्टेड नहीं हैं, और हमें ईमेल अटैचमेंट्स भी जो अननोन यूजर्स से आते हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमने पहले भी बात की है कि पासवर्ड्स जो होने चाहिए वो हमारे लेंदी होने चाहिए, और मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए क्योंकि इनको हैक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा
अगर हमारा सिस्टम नेटवर्क में है, इंटरनेटवर्क है उसमें, तो हमें फायरवॉल्स का यूज़ करना चाहिए। फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर हैं जो चेक पोस्ट की तरह काम करते हैं कि कोई भी अगर डेटा आपकी सिस्टम में आ रहा है या सिस्टम से जा रहा है तो पहले वो इस फायरवॉल के थ्रू पास करेगा। ये फायरवॉल क्या करता है? ये इंश्योर करवाता है सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑथेंटिकेट करता है कि क्या वो ट्रस्टेड यूज़र से आया है, अगर आया है तभी उसको अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, नहीं तो वो उसको वहीं रोक देता है। तो ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है इन किसी भी अटैक को होने से। सो बच्चों, हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को पढ़ा और कैसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें उसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स को, लेटेस्ट वर्जन्स को अपडेटेड रखना चाहिए अपने, और एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। तो students, if you have any queries, then just leave a comment. I'll solve your queries. Thanks for. Yes, students, after watching the series of services of an operating system, I hope you all would be able to answer the following questions. Our first question is, you have to write short notes on virus, bots and worms. Next, what is a firewall? Next, you have to name the services provided by the operating system. Our next question is, what is CAPTCHA? Why is it important? So, you have to tell the types here of a CAPTCHA and how is it important